Chapter 25. Paragraph Writing. A paragraph is a group of some well-organized, complete, correct, and concise sentences that are arranged in such a manner that together they focus on one subject, theme, or central idea. Paragraphs can be used to provide variety of information. It might describe a place, character, or process, narrate a series of events, compare or contrast two or more things, classify items into categories, or can even describe causes and effects. There is no set rule or specified length of a paragraph. It may be from 1 to many lines long. पैरा कुछ अच्छे से व्यवस्थित, पूर्ण, सही और संक्षिप्त वाक्य का समूह होता है, जिन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे एक ही विषय, विचार या केंद्रीय विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पैरा विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह किसी स्थान, पात्र या प्रक्रिया का वर्णन कर सकता है, घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन कर सकता है, दो या दो से अधिक चीजों की तुलना या विपरीत कर सकता है, आइटम को श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, या कारणों और प्रभावों का वर्णन भी कर सकता है। पैरे का कोई निर्धारित नियम या लंबाई नहीं होती है। इसका मतलब है कि पैरा का उपयोग किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है, जैसे स्थान, व्यक्ति, घटनाएं या कारण प्रभाव के बारे में विवरण देना। यह एक से लेकर कई पंक्तियों तक लंबा हो सकता है। The essential elements of paragraph writing are. पैराग्राफ लेखन के आवश्यक तत्व हैं। Unity. Every paragraph should have sentences that relate and refer to the central idea. Each sentence must be closely connected with the main theme of the paragraph. The theme of the paragraph is generally expressed in opening sentence known as title sentence. एकता, यूनिटी हर पैराग्राफ में ऐसे वाक्य होने चाहिए जो केंद्रीय विचार से संबंधित हों और उसे संदर्भित करें। प्रत्येक वाक्य को पैराग्राफ के मुख्य विषय से सीधे जुड़े रहना चाहिए। पैराग्राफ का विषय सामान्यतः उद्घाटन वाक्य में व्यक्त किया जाता है, जिसे शीर्षक वाक्य, टाइटल सेंटेंस, कहा जाता है। ऑर्डर. All the sentences that express the central idea of the paragraph should be arranged in a proper sequence and logical manner. क्रम. ऑर्डर केंद्रीय विचार को व्यक्त करने वाले सभी वाक्यों को उचित क्रम और तार्किक तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। Coherence. All the sentences in a paragraph should be well connected to each other as well as to the central idea. This quality of the paragraph makes the writing understandable and more readable. संगति. कोहेरेंस. पैराग्राफ में सभी वाक्य एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए होने चाहिए और केंद्रीय विचार से भी जुड़े हुए होने चाहिए। यह गुण उस पैराग्राफ को समझने योग्य और पढ़ने में आसान बनाता है। Completeness. It refers to a well-developed paragraph. If the main idea is supported by all sentences clearly and sufficiently, especially without loose-hanging sentences, then the paragraph is said to be complete. पूर्णता. Completeness इसका अर्थ है एक अच्छे से विकसित पैराग्राफ का होना। यदि मुख्य विचार को स्पष्ट और पर्याप्त रूप से सभी वाक्यों द्वारा समर्थित किया जाता है, खासकर बिना किसी अनावश्यक अधूरे वाक्यों के, तो उस पैराग्राफ को पूर्ण कहा जाता है। Read the following sample paragraphs. Conserve water, save life. जल बचाएं, जीवन बचाएं. Water is one of nature's precious gifts to mankind. All living things consist of water, like the human body, which is 2/3 water.
जल मनुष्य के लिए प्रकृति का एक मूल्यवान उपहार है। सभी जीवित प्राणियों में पानी होता है, जैसे कि मानव शरीर 2/3 पानी से बना है। यह वाक्य जल के महत्व को रेखांकित करता है कि मानव शरीर का 2/3 हिस्सा पानी से बना होता है, जिससे यह दर्शाता है कि जल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। It is a clear, colorless liquid that appears blue when viewed through a thickness of 20 feet. The color reflects not only from physical causes but also from suspended impurities. The freezing point of water is 0 degrees Celsius and its boiling point is 100 degrees Celsius. Water is the most essential component of life and is vital for sustenance. यह एक स्पष्ट, रंगहीन तरल है, जो 20 फीट की गहराई से देखने पर नीला दिखाई देता है। यह रंग न केवल भौतिक कारणों से बल्कि निलंबित अशुद्धियों से भी परावर्तित होता है। पानी का बर्फीला बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस और उबालने का बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी जीवन का सबसे आवश्यक घटक है और इसका अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह वाक्य पानी के भौतिक गुणों के बारे में जानकारी देता है। पानी रंगहीन और स्पष्ट होता है, लेकिन यह 20 फीट की गहराई से देखने पर नीला दिखाई देता है, जो जल की अशुद्धियों और भौतिक कारणों के कारण होता है। The importance of water in our diet is apparent as it helps the body perform specific metabolic tasks and regulates our body temperature. Moreover, water is unique as its density is similar to that of cell protoplasm. There is no doubt that water is everywhere, and it is very important to our earth and the life inhabiting it. Water contains no calories and is a significant factor in losing weight. हमारे आहार में पानी का महत्व इस प्रकार स्पष्ट है कि यह शरीर को विशिष्ट चयापचय कार्यों को करने में मदद करता है और हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त पानी अद्वितीय है क्योंकि इसकी घनता कोशिका के प्रोटोप्लाज्म की समान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पानी हर जगह है और यह पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है और यह वजन कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वाक्य पानी की सार्वभौमिकता और पृथ्वी पर जीवन के लिए इसकी अत्यधिक महत्वता को रेखांकित करता है कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है और हर जगह उपलब्ध है। खासकर वजन कम करने में इसके योगदान को, क्योंकि इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। It is the key component in determining the quality of our lives and is a universal solvent. यह हमारे जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में मुख्य घटक है और एक सार्वभौमिक विलायक है। यह वाक्य पानी के महत्व को समझाता है। यह जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाता है और पानी को एक सार्वभौमिक विलायक के रूप में प्रस्तुत करता है, जो कई पदार्थों को घोलने की क्षमता रखता है। Cultural views of water are based on predominant religious views, like the Ganges River in Hinduism. पानी के सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रमुख धार्मिक दृष्टिकोणों पर आधारित हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में गंगा नदी। यह वाक्य यह बताता है कि पानी का सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण अलग-अलग संस्कृतियों और धर्मों में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना जाता है। Water is known as the elixir of life. So, conserve water to save life. पानी को जीवन का अमृत कहा जाता है। इसलिए, पानी बचाएं, जीवन बचाएं। यह वाक्य पानी की अत्यधिक महत्वता को स्वीकार करता है। इसे जीवन का अमृत कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि पानी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
इसके बाद एक अपील की जाती है कि हमें पानी को बचाना चाहिए ताकि जीवन बचाया जा सके। यह पैराग्राफ जल के महत्व को जीवन के विभिन्न पहलुओं में, जैविक से लेकर सांस्कृतिक तक, प्रदर्शित करता है और इसे बचाने की आवश्यकता पर जोर देता है। चाइल्डहुड, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। बचपन जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा। Childhood is the best part of life because there are no responsibilities, which helps in living life in full ease and comfort. बचपन जीवन का सबसे अच्छा समय है क्योंकि इसमें कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, जिससे जीवन को पूरी तरह से आराम और सुविधा से जीने में मदद मिलती है। बचपन में बच्चों के पास किसी प्रकार की जिम्मेदारियां नहीं होती, जिससे वे बिना किसी तनाव के अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। यही वजह है कि बचपन को जीवन का सबसे सुखद और आरामदायक समय माना जाता है। इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ विच इज द लर्निंग पीरियड ऑफ लाइफ। यह जीवन का वह समय है जो जीवन का शिक्षा काल होता है। बचपन वह समय है जब बच्चे जीवन के पहले पाठ सीखते हैं, जैसे कि शिष्टाचार, समाज में कैसे रहना है और अन्य बुनियादी जीवन कौशल। यह शिक्षा का पहला कदम होता है। The memories of childhood ultimately become the lifelong memory which always brings a smile on our faces. बचपन की यादें अंततः जीवन भर की याद बन जाती हैं, जो हमेशा हमारे चेहरों पर मुस्कान लाती हैं। बचपन की यादें हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन जाती हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो यह हमें खुशी और संतोष का एहसास कराती हैं, जो चेहरे पर मुस्कान ला देती हैं। Only the grown-ups know the real value of childhood because the children do not understand these things. केवल बड़े लोग बचपन की असली कीमत को समझते हैं, क्योंकि बच्चे इन बातों को नहीं समझते। बच्चे बचपन की वास्तविकता और उसकी महत्वता को नहीं समझ सकते, लेकिन बड़े लोग अनुभव से जानते हैं कि बचपन कितना कीमती और अद्भुत होता है। Childhood flies away without giving any notice and never come back. बचपन बिना किसी सूचना के उड़ जाता है और कभी वापस नहीं आता। बचपन बहुत जल्दी और बिना किसी चेतावनी के समाप्त हो जाता है। यह एक ऐसा समय है जो कभी वापस नहीं आता और एक बार जाने के बाद हम उसे फिर से वापस नहीं पा सकते। But we should all be aware of an important fact about childhood. लेकिन हमें बचपन के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य से अवगत होना चाहिए। हमें बचपन की महत्वता को समझना चाहिए और यह जानना चाहिए कि यह समय बहुत मूल्यवान होता है। यह हमें सिखाता है और हमारे भविष्य की नींव रखता है। It is during childhood that a child is molded as individual for the rest of the life. बचपन में ही एक बच्चे को जीवन भर के लिए एक व्यक्तित्व के रूप में ढाला जाता है। बचपन में ही बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय में बच्चों की मानसिकता, आदतें और आस्थाएं विकसित होती हैं, जो उनकी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। It is the period which lay the foundation of a child's future. यह वह समय है जो एक बच्चे के भविष्य की नींव रखता है। बचपन वह समय है जब बच्चों की शिक्षा, संस्कार और आदतों की नींव डाली जाती है। यह समय जीवन के लिए महत्वपूर्ण दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। इट इज एन ओल्ड सेइंग, हेल्थ इज वेल्थ। यह एक पुरानी कहावत है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो यह समझाती है कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है और इससे अधिक मूल्यवान कुछ भी नहीं है।
अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास सबसे बड़ी दौलत है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, social and mental well-being and not merely the absence of disease or infirmity. स्वास्थ्य शारीरिक, सामाजिक और मानसिक भलाई की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। स्वास्थ्य केवल बीमारी से बचने का नाम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और समाज में पूर्ण समृद्धि की स्थिति है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, न कि केवल बीमारी से बचना। Health is thus a level of functional efficiency of living beings and a general condition of a person's mind, body and spirit, meaning it is free from illness, injury and pain. स्वास्थ्य इस प्रकार जीवित प्राणियों की कार्यात्मक दक्षता का स्तर है और किसी व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा की सामान्य स्थिति है, अर्थात यह बीमारी, चोट और दर्द से मुक्त है। स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य का समग्र प्रदर्शन है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति बीमारी, चोट और दर्द से मुक्त है और अपने सभी कार्यों में दक्ष है। It is a resource of everyday life and a positive concept emphasizing physical capabilities. यह दैनिक जीवन का एक संसाधन है और शारीरिक क्षमताओं को महत्व देने वाला एक सकारात्मक विचार है। स्वास्थ्य हमारे जीवन का एक आवश्यक संसाधन है, जो हमें दैनिक कार्यों को सही तरीके से करने की शक्ति प्रदान करता है। यह शारीरिक रूप से सक्षम होने का विचार है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर सकते हैं। Good health is a secret of every happy man. अच्छा स्वास्थ्य हर खुशहाल आदमी का रहस्य है। अच्छा स्वास्थ्य जीवन में खुश रहने का प्रमुख कारण है। जब आप स्वस्थ होते हैं, तो आप खुश रहते हैं, क्योंकि शरीर और मन दोनों अच्छे होते हैं। Staying healthy for children is vital for proper growth and development of mind and body as they need to focus in the class and fully participate in the activities on the field. बच्चों के लिए स्वस्थ रहना मानसिक और शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें कक्षा में ध्यान केंद्रित करने और मैदान पर गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने की आवश्यकता होती है। बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य आवश्यक है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से हो सके। स्वस्थ बच्चे कक्षा में अच्छे से ध्यान दे सकते हैं और खेलों में भाग लेकर शारीरिक रूप से भी मजबूत होते हैं। Parents must take their children for medical checkup and learn from experts about their development in terms of height and weight, as it has a huge impact on their overall performance and efficiency. माता पिता को अपने बच्चों को चिकित्सा जांच के लिए ले जाना चाहिए और उनकी ऊंचाई और वजन के संदर्भ में विशेषज्ञों से उनके विकास के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इसका उनके कुल प्रदर्शन और दक्षता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता पिता को बच्चों की नियमित चिकित्सा जांच करानी चाहिए और उनकी शारीरिक वृद्धि, जैसे ऊंचाई और वजन, के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि इसका बच्चों की पढ़ाई और खेलकूद में प्रदर्शन पर गहरा असर पड़ता है। If you are strong and healthy, you can be a shining example to others and teach them how to achieve vibrant health. अगर आप मजबूत और स्वस्थ हैं, तो आप दूसरों के लिए एक आदर्श उदाहरण बन सकते हैं और उन्हें यह सिखा सकते हैं कि कैसे अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त किया जाए। स्वस्थ और मजबूत व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। आप अपनी जीवन शैली से दूसरों को यह दिखा सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष: पैराग्राफ राइटिंग का उद्देश्य किसी एक विषय, विचार या विचारधारा को स्पष्ट,
सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना है। एक पैराग्राफ को प्रभावी और सटीक बनाने के लिए कुछ आवश्यक तत्व होते हैं। एकता, यूनिटी, प्रत्येक वाक्य का केंद्रीय विचार से जुड़ा होना आवश्यक है। थीम को प्रायः आरंभिक वाक्य में व्यक्त किया जाता है, जिसे टाइटल वाक्य कहते हैं। क्रम, ऑर्डर, विचारों को तार्किक और सही क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि पाठक को विषय आसानी से समझ आ सके। संगति, कोहेरेंस, पैराग्राफ के सभी वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिससे पैराग्राफ सुगम और पठनीय बने। पूर्णता, कंप्लीटनेस, मुख्य विचार को स्पष्ट और पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहिए ताकि कोई भी वाक्य अधूरा न लगे। उदाहरण, कंजर्व वाटर, सेव लाइफ। पानी को मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया गया है। यह न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, बल्कि यह शरीर की चयापचय क्रियाओं और पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी अनिवार्य है। पानी को बचाना जीवन को बचाने के समान है। चाइल्डहुड, द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। बचपन को जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा माना गया है क्योंकि यह जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। यह जीवन का वह समय है जब बच्चों को आकार दिया जाता है जो उनके भविष्य की नींव रखता है। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य को जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बताया गया है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना किसी भी व्यक्ति के जीवन को खुशहाल और सफल बनाता है। बच्चों के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि यह उनके विकास और प्रदर्शन को सीधे प्रभावित करता है।